Good morning, dear students. Students, in the previous classes, we have talked about the axial and the appendicular skeleton. In axial skeleton, we have talked that there are 80 bones which are included in the axial skeleton. The axial skeleton consists of the skull part, the sternum, which is also known as the breastbone, the ribs, as well as the vertebral column. The skull part was made up of 29 bones, in which cranial bones, facial bones, hyoid bone and ear bone was considered. Then after, the sternum was one single bone to which the ribs will be attached. The ribs, if we talk about the ribs, there were different types of ribs, true ribs, then were the false ribs, and then were the floating ribs. True ribs, they were 1 to 7 in number, and ribs are known to be bicephalic because they are having an attachment at the two sides. Ribs will be on the ventral side attached to the sternum, but on the dorsal side they are attached to the vertebral column. If we talk about the false rib, the rib number 8, 9 and 10 was the false one because they are not directly attached to the sternum. Instead, they will be attached to the 7th rib. And lastly, there were floating ribs which did not have any attachment on the ventral side, only they were present on the dorsal side, and they are for protecting our kidneys. So in this way, we have discussed about the ribs, and lastly vertebral column. So there were 26 bones included in the vertebral column. In this 26 bones, they were divided into different parts. That is the cervical vertebrae or the vertebrae of your neck, which includes the first two vertebrae known as atlas and axis. पहले दो vertebrae को क्या कहा जाता है? Atlas और axis कहा जाता है. आगे की बात करते हैं तो thoracic vertebrae होते हैं which are 12 in number. Then are lumbar vertebrae which are the largest in size, and lumbar vertebrae will be 5, sacral vertebrae will be fused 5, and the coccygeal vertebrae will also be 1 because it is also fused 1. So in this way, there were 26 bones included in the vertebral column. Now moving on to the next, that is after the skull part, sternum, ribs and vertebral column. This all make up our total 80 bones of the axial skeleton. If we talk about appendicular skeleton, it consists of those bones which are connected to the axial skeleton, and they will be, you can say that they are extending outwards from the axial skeleton. इनमें आ जाते हैं हमारे दोनों हाथ के जो बोन्स हैं और दोनों पैर के जो बोन्स हैं, ये आ जाते हैं, और साथ साथ में उनके साथ एसोसिएटेड गर्डल्स मतलब जो जॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं. अगर हम बात करें गर्डल्स की, तो दो गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल मतलब हमारा शोल्डर जॉइंट और पेल्विक मतलब हमारा हिप जॉइंट. पेक्टोरल गर्डल जो होता है उसमें दो बोन्स होते हैं, एक रॉड शेप्ड बोन जिसे कहते हैं क्लेविकल और एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन जिसे कहते हैं स्कैप्यूला. ये स्कैप्यूला सेकंड से लेके 7th रिब तक एक्सटेंड होने वाला एक लॉन्ग बोन है जो डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होता है, और इसी स्कैप्यूला में एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है एडिशनल जिसे स्पाइन कहा जाता है. जिस स्पाइन की मदद से वो क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है. उसके बाद हमने बात की थी कि कैविटी होती है वहां पे जिसे कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, और ग्लिनॉइड कैविटी इज विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जहां पे कांटेक्ट करेगा उस कैविटी को ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं. वैसे ही पेल्विक जॉइंट में हमने बात की थी कैविटी की जिसे कहते हैं एसिटाब्युलम, जहां पे फेमर का हेड आर्टिकुलेट करता है वो कैविटी को एसिटाब्युलम कहा जाता है. और दो जो बोन्स हैं राइट, उन्हें कॉक्सल बोन्स कहा जाता है, एंड ईच कॉक्सल बोन इज मेड अप ऑफ इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस. दोनों के बीच में जो फाइब्रस कार्टिलेज आती है उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है. सो इन दिस वे देयर वर टू टाइप्स ऑफ गर्डल्स. बोन्स की बात करें तो देयर विल बी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, देन देयर विल बी कार्पल्स, metacarpals and phalanges, right, which make up a total of 30 bones. Same way, अगर लेग की बात करें तो फेमर, टिबिया, फिब्यूला, नी कैप जिसे पैटेला कहते हैं, tarsals, metatarsals and phalanges. They also make up
30 bones. So in this way we have talked about 126 bones of the appendicular skeleton. It is very important to remember names of each of these bones, right? Now we are moving on to the next topic, that is the joints. जब हमने बोन्स की बात की है तो बोन्स हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये जो कनेक्शन है उनके बीच में, दैट इज अलाउइंग द मूवमेंट पॉसिबल एंड सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड द जॉइंट्स. सो द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज between the bones is known as, or you can say which allows the bone movement, is known as the joints. So we are talking about the joints. So the structural arrangement of tissues between the bones is known as joints. तो joints क्या होते हैं कि टिश्यूज से बने हुए एक अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट है which is made up of tissues, but where does it lie? It lies between the bones. bones के बीच में होता है ये कनेक्शन और इसीलिए इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? joints. Based on the amount or the movement that is possible, there are 3 types of joints. Joints जो होते हैं वो कितनी मूवमेंट अलाउ करते हैं उसके बेसिस पे 3 टाइप के joints होते हैं. So on the basis of movement the joint allows, there are 3 types of joints, right? सारे ही joints equal movement नहीं allow करते. Some of the joints show flexibility and some of the joints are so stiff that they don't allow any movement. So on the basis of the movement they allow, the joints are of 3 types. The first type of joint, that is fixed, or you can say fibrous or immovable joint. The first type of joint is the fixed joint, or you can say the fibrous or the immovable type of joint. तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं. अब फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट का मतलब ये होता है कि ये ऐसे फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बोन्स के बीच में. तो ये जहां पे प्रेजेंट होंगे इस तरह के जॉइंट्स, वो बोन्स के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे, राइट? सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाइट fibrous cartilage between the bones. Thus, it does not allow any movement. It does not allow any movement. याद रखना है कि फिक्स्ड जॉइंट्स कब कहते हैं या इमूवेबल जॉइंट्स, ये जिस भी बोन्स के बीच में प्रेजेंट है उनके बीच में प्रेजेंट है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों बोन्स के बीच में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, और जब कोई मूवमेंट पॉसिबल ना हो तो इस तरह के जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है. अब आप सोचिए कि इस तरह के जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं. तो हमारे जो स्कल के बोन्स हैं इनके बीच में आपने एक जिगजैग सी छोटी सी लाइन देखी होगी. इफ यू हैव ऑब्जर्व द डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक, दीज आर नोन एज स्यूचर्स. स्यूचर्स जहाँ पे होते हैं वहां पे बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. सो इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन, तो लोकेशन में हम बता सकते हैं दैट बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, दैट इज द स्यूचर्स.
स्कल के जो बोन्स हैं, राइट, आपने देखा होगा कि फ्रंटल है, पैराइटल है, इनके बीच में एक छोटे से जिगजैग लाइन जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब ये सारे बोन्स है तो एक दूसरे से अलग, पर बोन्स के बीच में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बिटवीन योर टीथ एंड मैंडिबल, टीथ एंड मैंडिबल जो हमारे जॉ बोन्स हैं, एंड टीथ एंड मैक्सिल, ये दोनों हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ के बोन्स हैं, ठीक है। तो मैंडिबल जो है या दो मैक्सिले हैं और वो और टीथ, इनके बीच में भी कोई भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी किस तरह के जॉइंट्स हो गए, इमूवेबल जॉइंट्स। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स, द सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज slightly movable or cartilaginous joints. The second type of joints are known as slightly movable joints और आप कह सकते हो cartilaginous joints. अब जब हम बात कर रहे हैं स्लाइटली मूवेबल, मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे किस तरह की कंडीशन होती है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में क्या होता है कि दो जो बोन्स हैं उनके बीच में वाइट मतलब फाइब्रस कार्टिलेज होती है, बट that cartilage is present in the form of the pad and therefore it provides a cushion like structure. जैसे cushion compress होता है तो थोड़ी बहुत movement possible है, same way over here also there is slight movement possible. हाँ, rotation या twisting या ऐसा possible नहीं होता, but वो cushion like structure के press होने की वजह से somewhat movement is possible in this case. So slightly movable cartilage, there is presence of white fibro cartilage between the two bones, right? यहाँ पे white fibrous and sorry cartilage की जगह पे tissues लिखना है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज आप लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको लिखना है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है इट विल बी नॉट अलाउइंग दैट मच मूवमेंट बट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैड, कुशन पैड की तरह प्रेजेंट है, इसीलिए थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल है। वैसे तो है यहाँ पे भी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इसीलिए ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं होने वाली। सो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स इन द फॉर्म ऑफ pad or cushion, and the movement is possible, movement is possible due to compression of the cartilage। और मूवमेंट क्यों है, क्योंकि ये जब कार्टिलेज जो दो बोन्स के बीच में है, इनके बीच में पैड और कुशन की तरह कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रेशन होगा ही, और कॉम्प्रेशन होने की वजह से समवॉट मूवमेंट विल बी पॉसिबल। तो सच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, आई एम राइटिंग द लोकेशन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो हमारे दो जो वर्टिब्रे है, राइट, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे होते हैं, राइट, तो हर एक वर्टिब्रे के बीच में जो जगह है वहां पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और इसी की वजह से ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम थोड़ा बहुत बेंड हो सके, अदरवाइज इट डज नॉट प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, राइट। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और दूसरी जगह है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है कि दो जो कॉक्सियल बोन्स है वो जहां पे मिलते हैं, at that point there is pubic symphysis. In the case of the pregnant females, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो चाइल्ड जो है वो इन्हीं के बीच में से बाहर निकलता है, और इसीलिए प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो काफी डायलेट भी हो सकता है, राइट। सो इट इज पॉसिबल इन डिफरेंट केसेस दैट द मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज पॉसिबल, राइट, पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाता है। The third type of joints are known as the synovial joints.
The synovial joints are known as freely movable joints. मतलब मैक्सिमम टाइप के मूवमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो किस वजह से है? साइनोवियल जॉइंट्स की वजह से. साइनोवियल जॉइंट्स की वजह से जो मूवमेंट पॉसिबल है वो क्यों है? तो साइनोवियल जॉइंट्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर की वजह से मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर टू बोन्स, राइट? ये एक बोन है एंड दिस इज द अनदर बोन. अब ये दोनों जो बोन्स हैं, consider two bones like this. Now between these two bones over here there will be presence of the cartilage, because bone के जो ends होते हैं वो हमेशा किससे कवर्ड होते हैं? कार्टिलेज से कवर्ड ही होते हैं. और इस कार्टिलेज के बाद एक और मेम्ब्रेन आ जाती है और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन. There is one more membrane. तो पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है ये पूरा कार्टिलेज है. ओके, एंड कार्टिलेज के बाहर एक और व्हाइट कलर का बाउंड्री जो मैंने बताया है, दैट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन. Moreover, there will be presence of the ligaments because two bones are always connected by the ligaments. दो जो बोन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? लिगामेंट्स होते हैं. और बोन और मसल के बीच में क्या होता है? टेंडेंस होते हैं. तो क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा लेबल कर देती हूँ. दिस इज नोन एज द आर्टिक्युलर कार्टिलेज. आप आर्टिक्युलर कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज भी कह सकते हो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम. देन आफ्टर द व्हाइट कलर्ड बाउंड्री इट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल membrane. After it there is presence of a fluid over here. This fluid is known as the synovial fluid and this structure is the ligament. Okay, so there is an articular cartilage, synovial membrane, synovial fluid and the ligament. ये मैंने यहाँ पे लेबल किया है. अब साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट में जो आप साइनोवियल मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स. व्हाट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स. और ये सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स एक फ्लूइड रिलीज करते हैं और उस स्टिकी फ्लूइड को कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड. ये एग का जो व्हाइट होता है, राइट, उसी की तरह एक थिक कंसिस्टेंसी वाला फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड. ये जो साइनोवियल फ्लूइड है दैट विल फंक्शन एज प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ bones and provides cushion like structure और flexibility between the two bones. ये fluid जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है. मोर ओवर साइनोवियल मेम्ब्रेन या बाकी के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और साथ साथ में एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करता है. तो सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स जो है वो ये साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करते हैं. Moreover, there is presence of the articulating cartilage also, ताकि दो बोन्स के बीच में लीस्ट से लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करें, क्योंकि हमारे बोन्स जितने काम करते हैं उतना उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ता है, पर ये ना हो इसीलिए क्या होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है. सो इसका एक मेजर फंक्शन है दैट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू bones, and lastly they are connected through what? Through the ligaments. So such type of specialized structure is of the synovial joints and therefore most of the freely movable joints जो हमारी बॉडी में है वो सारे ही synovial joints हैं. So let us now talk about all 5 synovial joints. वो 5 types के होते हैं तो हम हर एक के बारे में बात करेंगे with their locations. So let us now discuss about the different types of the synovial joints.
The first type of synovial joint is known as the gliding joint. The gliding joint is the simplest type of the synovial joint. And the articulating surface of the two bones is flat. मतलब दो जो surfaces हैं उनके आर्टिकुलेटिंग मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे ये मूवमेंट शो करेंगे. सो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ दिस टू बोन्स इज फ्लैट. और फ्लैट होने की वजह से क्या होता है कि दे आर गोइंग टू शो ओनली back and forth and side by side movements. They are going to show only back and forth movement. So they show only back and forth and side by side movement. Right? यहाँ पे no rotation or twisting. No rotation or twisting is possible at the place of the gliding joint. तो ग्लाइडिंग जॉइंट में दो जो बोन्स होने वाले हैं, ये दो बोन्स के बीच में कहाँ पे होता है वो पहले याद कर लेना है. तो ये प्रेजेंट होता है हमारे कार्पेल्स में और हमारे टार्सल्स में. अब अगर आप देखो तो कार्पेल्स के जो सारे बोन्स हैं, ये सारे बोन्स एक दूसरे से इतने करीब लोकेटेड होते हैं कि इनके बीच में रोटेशन या ऐसी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. सिर्फ ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे ग्लाइड करते हैं एंड देयरफॉर दे आर नोन टू बी अ ग्लाइडिंग जॉइंट. रोटेशन या ट्विस्टिंग जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सिर्फ बैक एंड फोर्थ साइड बाय साइड मूवमेंट्स होने वाली है. राइट? इनके बीच में बिटवीन द बोन्स ऑफ कार्पेल्स एंड बिटवीन द बोन्स ऑफ टार्सल्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्पेल्स एंड मेटाकार्पेल्स. ठीक है? सिर्फ कार्पेल्स के जो बोन्स थे 8 बोन्स उनके बीच में. तो ये बोन्स के बीच में सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या थोड़ी बहुत साइड बाय साइड मूवमेंट पॉसिबल होती है एंड देयरफॉर दे फॉर्म द ग्लाइडिंग जॉइंट. सो वी आर मेंशनिंग द लोकेशन दैट इज located between carpels as well as between the tarsals, not between carpels and tarsals. okay? carpels जो bones हैं उनके बीच में और tarsals जो हैं उनके बीच में भी gliding joint होता है. The second type of joint is the hinge joint. The hinge joint also shows movement in one axis only. एक ही एक्सिस में. hinge joint में क्या होता है कि one bone is present in the concave cavity of the another bone. One bone is located in the concave cavity of other bone. अब ये कैसे लोकेटेड होता है? तो अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है रेडियस एंड अल्ना, तो रेडियस एंड अल्ना में आप क्या देखते हो कि रेडियस और अल्ना का जो बोन है उसमें से एक बोन थोड़ा लंबा होता है और दूसरा बोन जो है दैट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड इट अलाउज अ रोटेशन टाइप ऑफ मूवमेंट. इट विल बी अलाउइंग द रोटेशन, दैट इज वन बोन इज रोटेटिंग ओवर द अनदर बोन. राइट? सो बिटवीन रेडियस and the ulna region. okay? Between the radius and ulna there will be presence of the hinge joint. मतलब आप ये जो देख सकते हो एक्चुअली रेडियस और अल्ना नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं हम कि एट द साइट ऑफ और एट द साइट ऑफ किसकी साइड? एल्बो हम बोल सकते हैं. राइट? डायरेक्टली at the elbow region or similarly you can say that
नी रीजन। एल्बो रीजन में आप क्या देख सकते हो कि एक बोन इतना लंबा है और दूसरा जो बोन है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा, नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बोन है पीछे, ये बोन इतना लंबा है दैट इट विल हिंडर एंड देयरफॉर यू कैन नॉट फोल्ड योर हैंड बैकवर्ड्स, राइट। ये इधर ही एक ही प्लेन में मूव होगा। तो हिंज जॉइंट जो होता है वो दो जगह पे मेनली होता है। हमारा एल्बो जो जॉइंट है वो एक हिंज जॉइंट है, और सेम वे आप नी में भी देखोगे, इट अलाउज द मूवमेंट इन वन एक्सिस बट यू कैन नॉट मूव योर लेग फॉरवर्ड, राइट, बिकॉज देयर इज अ बोन विच इज मेकिंग अ हिंडर। तो यहाँ पे शैलो जो डिप्रेशन है कॉन्केव कैविटी, उसमें ये बोन प्रेजेंट होने की वजह से हिंज जॉइंट जो है दैट शोज द मूवमेंट इन ओनली वन वे, ओके, दैट इज वन एक्सिस। थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इज द पाइवोट जॉइंट, और यहां पे आएगा बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। पाइवट जॉइंट का एग्जांपल आएगा रेडियस एंड अल्ना विच शोज रोटेशन टाइप ऑफ मूवमेंट। अब यही क्या होगा कि यहाँ पे वन बोन फिट्स इनटू द शैलो डिप्रेशन ऑफ other bone. Now when I say one bone fits into shallow depression of other, तो यहां पे हम लिख सकते हैं between radius and ulna। ये particularly rotation type of movement होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो एटलस और एक्सिस है, राइट, फर्स्ट टू बोन्स ऑफ वर्टिब्रे, जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल है हमारे नेक का, ये भी क्या है, पाइवट जॉइंट, राइट। नॉट बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस, उनके बीच में क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स और एटलस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, पर एटलस और एक्सिस के बीच में, राइट, बिटवीन एटलस जो फर्स्ट बोन है एंड एक्सिस विच इज द सेकेंड बोन, तो ऑफ वर्टिब्रे, इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है पाइवट जॉइंट, ओके। द फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज द सैडल जॉइंट, राइट। तो सैडल जॉइंट जो होता है इट इज अ सैडल शेप जॉइंट, ओके। सो वन बोन फिट्स इनटू saddle shaped structure of other joint. It shows the movement in two axes, so we can say that between carpals and metacarpal of thumb, carpal and metacarpal of thumb which forms a saddle shaped structure। आप देख सकते हो कि इस शेप को सैडल अगर आपको पता हो तो हॉर्सशू में जो होता है उस शेप को सैडल शेप कहा जाता है। तो सैडल जो है यहाँ पे उसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब ये जो डिप्रेशन बन रहा है इसे सैडल जॉइंट कहते हैं। एंड सैडल जॉइंट प्रोवाइड्स द मूवमेंट इन टू एक्सिस, राइट, बैक एंड फोर्थ भी होने वाला है और रोटेशन भी होने वाला है, इसलिए सैडल जॉइंट जो है इट शोज अ बायएक्सियल टाइप ऑफ मूवमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी सैडल जॉइंट की ज्यादा है कंपेयर टू पाइवट और हिंज जॉइंट। The fifth type of joint, which is the most common one, is known as the ball and socket joint. तो ball and socket joint जो है वो काफी freely movable joint है। It is a freely movable joint, and as the name suggests, one bone will be like a bone which will fit into the socket of the another bone. So one bone which is having like ball structure fits into socket structure of another bone. For example, head of humerus, and head of humerus fits with which cavity? Glenoid cavity, and the glenoid
कैविटी। तो आपका जो शोल्डर जॉइंट है, राइट, यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमरस का जो हेड है दैट विल बी कॉन्टैक्टिंग अ कैविटी विच इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट इन द स्कैपुला। तो बॉल लाइन सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एक जो है वो सॉकेट है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट विल फिट लाइक दिस, तो इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। सेम वे हेड ऑफ फेमर with the cavity which is called acetabulum, right? acetabulum जो coxal bone में होती है, तो इनको ball and socket। तो सबसे ज्यादा freely movement मल्टी एक्शियल मूवमेंट आप बोल सकते हो, राइट? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रोटेशन, ये सारी मूवमेंट पॉसिबल है किसमें? बॉल एंड सॉकेट। तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की होती है, फिर सैडल जॉइंट की होती है। पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, दे शो ओनली मोनो एक्शियल मूवमेंट, मतलब एक ही एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल होती है इन द केस ऑफ रेस्ट ऑफ द थ्री। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। So you have to remember 3 main types, and in that also synovial joints is of the 5 different types.